پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریا پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حاتم برتن اٹھا کر لے گیا اور اس نے پانی کا ایک اور جگ بھر کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ خامس نے کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، پھر سٹینڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اپنے قریب رکھ لیا۔ وہ رسیور اٹھا کر نمبر ملانا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے رسیور رکھ دیا۔ گوپانگ رکھیل شاہ کے بنگلے پر تھا۔ اگر کال رکھیل شاہ نے ریسیو کر لی یا اسے پتہ چل گیا کہ گوپانگ کو فون کرنے والا خامس ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ خامس ناکام لوٹا ہے اور اس طرح بات کچھ اور الجھ جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کچھ تھکن اور کچھ کھانے کا خمار تھا کہ لیٹتے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ وہی خامس تھا جسے سندس بحل قاسم کہا جاتا تھا اور اسے ہمیشہ جاگتے ہوئے اور چاقو چبان دیکھا گیا تھا۔ پسلیوں پر پڑنے والی زوردار ٹھوکر سے خامس کی آنکھ کھل گئی اور وہ گڑبڑا کر اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ پر نیند کا خمار طاری تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ٹھوکر کس نے ماری تھی اور اس کی آنکھ کیوں کھلی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا اور اس کے چند قدم کے فاصلے پر گوپانگ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا اور چہرہ غیظ و غضب کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے ٹھوکر کس نے ماری تھی؟ تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ اور خامس کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے ماری تھی ٹھوکر، اور تم ہو کہ اس قابل کے؟ تم نے مجھے ٹھوکر ماری تھی پدے؟ اور خامس نے کسی ناراض بچے کی طرح چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی اور اس کا چہرہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے ٹھوکر ماری تھی، گوپانگ گرایا۔ تم آرام سے یہاں سو رہے ہو اور جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کیا قیامت مچی ہوئی ہے۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹھوکر مارنے کی؟ خاصہ بلے کی طرح گراتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور اس کے دماغ پر نیند کا خمار کافور ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اور تمہارے جسم کا جوڑ ہلا دوں گا، نمک حرام! گوپانگ نے کہتے ہوئے ہنٹر چلایا۔ شراب کے بعد سے ہنٹر خامس کے جسم پر لگا اور وہ سسک کر رہ گیا۔ گوپانگ نے جیسے ہی دوسرا وار کیا، خامس نے ہنٹر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف زوردار جھٹکا دیا اور گوپانگ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا خامس کے قدموں پر ڈھیر ہو گیا۔ خامس نے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ گوپانگ بل بلا کر پیچھے لڑ گیا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس دوران خامس نے ایک اور ٹھوکر ماری۔ گوپانگ صوفے پر گرا اور صوفے سمیت پیچھے الٹ گیا۔ اس نے اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ خامس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گوپانگ نے بڑی پھرتی سے جیب سے پستول نکال لیا۔ رک جا خامس، اور ورنہ گولی مار دوں گا، وہ چیخا۔ تم نے مجھے ٹھوکر کیوں ماری تھی اور ہنٹر سے حملہ کیوں کیا تھا؟ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ خامس بدستور آگے بڑھ رہا تھا۔ خامس رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گا۔ گوپانگ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری وجہ سے رکھیل شاہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ رکھیل شاہ کا نام سنتے ہی خامس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور وہ عجیب سی نظروں سے گوپانگ کی طرف دیکھنے لگا۔ رکھیل شاہ کو پتا چل گیا تھا کہ تم یہاں موجود ہو اور اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں شوٹ کر دیا جائے، لیکن میں تو تمہیں صرف اتنی سزا دینا چاہتا تھا کہ جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو سکے اور تم اپنی غلطی کی تلافی کر سکو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں خامس، اور میں تمہیں رکھیل شاہ کے غضب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتے ہو اور وہ اپنے کسی ایسے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو تمہاری طرح غلطیاں کرتا چلا جائے، گوپانگ نے کہا، اور وہ خامس پر پستول تانے بددستور پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ خامس چیخا، اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ عورت کتنی خطرناک ہے اور اس سے حویلی کے باہر بھی اس کے حمایتی موجود تھے۔ اگر وہ ان کی مدد سے بھاگ گئی ہے تو اس میں میری کیا غلطی؟ اور میں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔
अगर उसके भाग जाने में मैं कसूरवार हूं तो तुम भी मेरी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। रखेल शाह ने जो सज़ा मेरे लिए तजवीज़ की है वही सज़ा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा, गोपांग ने कहा। आज सुबह जो कुछ हुआ और तुम भी जानते हो। तुम जरियाब से पिटने के बाद भाग गए थे, लेकिन बदरी और उसका साथी उन लोगों के हाथ लग गए और जिन्हें मस्क के मुसाफिरों ने शाहपुर कस्बे की पुलिस के हवाले कर दिया और उन सब ने मुश्तरका तौर पर बयान दिया कि तुम लोग बस से किसी औरत का असलह के दौर पर अगवा करना चाहते थे और बदरी बस के मुसाफिर औरतों के सरों से चादरें खींच रहा था और तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा जुर्म है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बदरी जैसे आदमी को साथ लेकर मत जाओ, वह भरोसे का आदमी नहीं है। क्या रखेल शाह इतना बेबस हो गया है कि कानून से डरने लगा है? बड़े बड़े पुलिस अफीसर उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं, कानून उसका क्या बिगाड़ सकता है? खामस ने उसे घूरते हुए कहा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, गोपांग ने कहा। अगर राशि और बददियानत पुलिस अफीसर रखेल शाह के सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून उसका गुलाम बन गया है। तुम जानते हो कि बदरी ने पुलिस को जब बयान दिया है उससे रखेल शाह के लिए कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। क्या बयान दिया है बदरी ने? खामस बोला। अगर उसने रखेल शाह के खिलाफ कोई बात की है तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। शायद अब तुम ऐसा ना कर सको इसलिए कि वो पुलिस की तहवील में है, गोपांग ने कहा। और उसने क्या बयान दिया है? खामस ने पूछा। उसने कहा है कि यह सब कुछ रखेल शाह के कहने पर हुआ है और ये कि तुम उन दोनों के साथ थे और तुम लोगों ने बस्तियों में और सड़कों पर बसें और प्राइवेट गाड़ियां रोककर जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने पुलिस के सामने बक दिया है। बात बदरी या किसी और पर नहीं, रखेल शाह पर आ रही है। रखेल शाह इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार है उसके पेश नज़र तुम समझ सकते हो कि यह बात रखेल शाह को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो जरियाब को तलाश कर रहा था और उसे हर कीमत पर पकड़ना चाहता था, खामस ने जवाब दिया और वह वाकई कुछ परेशान हो गया था। तो क्या पकड़ लिया उसे? कहाँ है वो? गोपांग के लहजे में किसी कदर दुरुस्तगी आ गई और खामस को पिस्पाई इख्तियार करते देकर उसका हौसला किसी कदर बढ़ गया था। उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया और सोफे के पीछे से निपे तले कदम उठाता हुआ खामस के करीब पहुंच गया और बड़े मोहतात अंदाज में उसके हाथ से हंटर ले लिया। वो आसपास ही कहीं मौजूद है, खामस ने धीमे लहजे में जवाब दिया। आसपास ही मौजूद है? मैं समझा नहीं। गोपांग ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है कि दरवेशपुर या कुतबा आबाद में या फिर आदमपुर में, खामस ने जवाब दिया। ओहो! और गोपांग के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। तुम जानते हो कि दरवेशपुर और आदमपुर के दरमियान 13 मील का फासला है और आदमपुर का तकरीबन इतना ही फासला कुतबा आबाद से है और कुतबा आबाद से दरवेशपुर का फासला भी तुम जानते हो। इस तरह तवील फासलों पर मुश्तमिल ये एक तकोन बन गई है। दरवेशपुर की आबादी 2 लाख से कम नहीं और 20-25 हज़ार की आबादी तो कुतबाबाद की भी होगी। और अगर लोग कुतबाबाद या दरवेशपुर पहुंच गए हैं तो क्या तुम्हारे ख्याल में उन्हें तलाश करना आसान होगा? वैसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो लोग इस तकोन में कहीं मौजूद होंगे? वो लोग दरवेशपुर की तरफ से आने का खतरा मोल क्यों लेने लगे? और किसी और तरफ भी तो जा सकते हैं। मैंने माची नहर के पुल के करीब वो लैंड क्रूजर देखी है जो उन्होंने पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से या किसी और बिना पर नहर में धकेल दी थी, खामस ने जवाब दिया। कैसी लैंड क्रूजर? तुम्हारा मतलब है कि? गोपांग खामोश होकर उसकी तरफ घूरने लगा। हाँ, हमारी लैंड क्रूजर, खामस ने कहा। हमने दरियाब और उसके साथियों को पकड़ लिया था लेकिन फिर अचानक ही बस के तमाम मुसाफिरों ने हम पर हमला कर दिया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मुझे शुबा है कि दरियाब और उसके साथी दोबारा बस में बैठने की बजाय हमारी लैंड क्रूजर पर उस तरफ आए थे जिसे बल आखिर उन्होंने नहर में धकेल दिया। और वैसे मुझे शुबा है कि वो लोग कुतबा आबाद या दरवेशपुर नहीं आए होंगे। आदमपुर वहाँ से ज़्यादा करीब है और वो लोग उसी तरफ निकल गए होंगे और उन्होंने उस बस्ती ही के किसी घर में पनाह ली होगी। इसका मतलब है कि अब तुम अपने दिमाग से भी कुछ सोचने लगे हो। गोपांग के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ करो खामस, कुछ करो। और वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम नहीं जानते कि रखेल शाह तुमसे कितना नाराज है और उसके ख्याल में ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम उसके ज़्यादा करीब रहे हो और उसे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो और वह ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। वो तो महज शुबे की बुनियाद पर अपने मुखालफीन को मौत के घाट उतार दिया करता है और तुम खुद उसके कहने पर कितने आदमियों की गर्दनें मरोड़ चुके हो। इसलिए कहता हूँ कि कुछ करो। अगर तुम किसी तरह दरियाब को तलाश करके उसके सामने पेश कर दो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे
और तुम एक बार फिर रखेल शाह की आंख का तारा बन जाओगे। और वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, दरियाब कहाँ हो सकती है? आदमपुर में, खामस ने जवाब दिया। वो छोटी बस्ती है और उन्होंने सोचा होगा कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरफ आने वाले रास्ते पर लैंड क्रूजर नहर में इसलिए फेंकी गई होगी कि अगर लैंड क्रूजर नजरों में आ जाए तो हम धोखा खा जाएंगे और छोटी सी बस्ती को नजरअंदाज करके उन्हें दरवेशपुर की गुंजान आबादियों और कुतबाबाद में ढूंढते फिरें। वुड और गोपांग के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो तुम्हें एक ऐसा रोबोट समझता था जो सिर्फ रखेल शाह के इशारों पर चलता है, लेकिन तुम तो बहुत ज़हीन निकले। आदमपुर तकरीबन 1500 नफूस पर मुश्तमिल है और वो जागीर की हदूद में भी शामिल नहीं। मुझे ज़रा सोचने दो, और दरियाब वहाँ किसके पास जा सकती है? इस बस्ती का कौन सा ऐसा घर है जो उसे पनाह दे सकता है? और वो चंद लम्हे सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक उभर आई। बंजान को जानते हो? और वह सवालिया निगाहों से खामस को देखने लगा। बंजान कौन है? वही बूढ़ा जो रखेल शाह के दफ्तर में काम करता है, खामस बोला। हाँ वही, गोपांग ने जवाब दिया। और मुझे याद है कि पिछले साल वो बीमार हुआ था तो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आदमपुर गया था, जहाँ उसका कोई रिश्तेदार रहता है। उसकी कुछ अराजी है और लीची का बाग है, और वो लीची का सीज़न था। जागीर के बागों की लीची अभी नहीं आई थी, मगर बंजान आदमपुर से हमारे लिए लीची की 2 पेटियां लाया था। लेकिन दरियाब का उससे क्या तल्लुक हो सकता है? खामस ने उसे घूरा। दरियाब के साथ एक औरत और एक मर्द भी है। दरियाब का ना सही हो सकता है कि उन दोनों में से किसी का तल्लुक हो और उन्हें वहाँ पनाह मिल गई हो, गोपांग ने कहा। हो सकता है कि खामस ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, गोपांग ने कहा, मेरे साथ आओ। पहले हम बंजान से यह मालूम कर लें कि आदमपुर में उसका रिश्तेदार कौन है, ताकि उस तक पहुँचने में आसानी रहे। बंजान तो दरवेशपुर में है, खामस ने कहा। हाँ, हम वहीं चलेंगे, गोपांग ने जवाब दिया। और तुम एक बात याद रखना, तुम अपने दिमाग पर काबू रखोगे। गर्म दिमागी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो बस्ती हमारी जागीर में शामिल नहीं। खामस जवाब देने की बजाय खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। गोपांग ने हातम को बुलाकर सोफे वगैरह दुरुस्त करने को कहा और खामस के साथ बाहर निकल गया। उन्होंने तकरीबन 60 मील का फासला खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों पर ही तय किया था। रास्ता कच्चा और नाहमवार होने की वजह से लैंड क्रूजर की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। पिछली सीट पर बैठी हुई दरियाब कुंदन और खुशनुमा को मुसलसल झटके लग रहे थे, और जिसकी वजह से कुंदन अपनी टांग के जख्म में तकलीफ महसूस करने लगी थी और दरियाब भी बाद औकात बेख्तियार करा उठती। और खामस से हंगामा आराई के दौरान 1-2 अंदरूनी चोटें भी आई थीं, जिनमें वो लैंड क्रूजर को लगने वाले झटकों की वजह से कुछ तकलीफ महसूस कर रही थी। बिल आखिर वो खेतों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क सीधी दरवेशपुर की तरफ चली गई थी। शाहपुर नामी वो कस्बा उस सड़क पर बहुत पीछे रह गया था, जहां उनके ख्याल में बस के ड्राइवर और मुसाफिरों ने बदरी और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। पुख्ता सड़क पर आते ही जरमक ने लैंड क्रूजर की रफ्तार बढ़ा दी और खेतों में ड्राइवर की वजह से उनका रास्ता खासा तवील हो गया था। इस वक्त 10:30 बजे थे और जरमक के ख्याल में दरवेशपुर अब भी तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था। धूप में खासी तेजी आ गई और जिससे लैंड क्रूजर के कनोज की साइड्स और छत बुरी तरह तप गई थी। उन्हें यूं लग रहा था जैसे वो किसी दहकते हुए तनूर में बैठी हों, और गर्मी की वजह से प्यास भी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। जरमक भी इन लड़कियों की कफियत से आगाह था। सड़क के दाएं बाएं भी देख रहा था कि शायद कोई ऐसी जगह नजर आ जाए जहां से पानी मिल सके। अभी तक उसे ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई थी। तकरीबन पौने घंटे के सफ़र के बाद सड़क पर बहुत आगे एक छोटी सी बस्ती के आसार दिखाई देने लगे और उसने लैंड क्रूजर की रफ्तार कम कर दी। सड़क से ज़रा हटकर 8-10 घरों पर मुश्तमिल वो काश्तकारों की एक छोटी सी बस्ती थी। सड़क के दोनों किनारों पर झोंपड़ी नुमा दुकानें और होटल बने हुए थे। जिस तरफ ये लोग जा रहे थे उस तरफ होटल के सामने 3 माल बरादर ट्रक खड़े थे, जो यकीनन दरवेशपुर जा रहे थे। ट्रकों के ड्राइवर चाय वगैरह पीने और कुछ सस्ताने के लिए यहाँ रुक गए थे, जबकि दूसरी तरफ सड़क के किनारे दरवेशपुर से आने वाली एक बस खड़ी थी। बस गारबन अभी अभी वहाँ आकर रुकी थी, क्योंकि मैले कुचैले देहाती कपड़ों में मलबूस खवांचा वालों ने बस को घेर रखा था और वह बस की खिड़कियों से मुसाफिरों को गंडेरियाँ, समोसे, पकौड़े, चने और इसी किस्म की चीज़ें फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। 2 बंदे पानी की बाल्टियाँ उठाए मुसाफिरों को पानी पिला रहे थे। जरमक ने लैंड क्रूजर सड़क से उतार ली और उसे कच्चे में ड्राइवर करता हुआ झोंपड़ी नुमा होटलों और दुकानों के पीछे ले आया और टहनी के दरख्तों के नीचे रोक लिया। दरख्तों के नीचे बांध की खुरदरी सी चारपाई पर बैठे हुए
2-3 बूढ़े देहाती हुक्के के कश लगा रहे थे। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जरमक ने इंजन बंद कर दिया और लैंड क्रूजर से नीचे उतर गया। जरमक, यहाँ चाय मिल जाएगी, सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। कुंदन ने कहा, मैं लेकर आता हूँ, पानी भी और चाय भी। मेरा ख्याल है कि चाय सभी लोग पियेंगे। जरमक कहते हुए बारी बारी उन तीनों की तरफ देखने लगा। हाँ, हम भी चाय पियेंगे, लेकिन पहले पानी। हलक में कांटे चुभ रहे हैं, दरियाब ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा। जरमक ऊपर से घूमकर दुकानों के सामने वाले रुख पर चला गया और उसकी वापसी में 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके साथ मैले कुचाले लिबास में 10-12 साल की उम्र का एक लड़का भी था, जिसने प्लास्टिक का एक मैला सा जग और शीशे के 2 गिलास उठा रखे थे। एक जग और गिलास जरमक के हाथ में भी था और उसने गिलास भरकर दरियाब की तरफ बढ़ा दी। लड़का कुंदन और खुशन माँ को गिलास भरकर दे रहा था और जरमक ने जेब से एस्प्रिन की गोलियों का एक पत्ता निकाल लिया। खोखे से सर दर्द के लिए ये गोलियां मिल गई थी, कोई खाना चाहे तो। उन तीनों ने 2-2 गोलियां पानी के साथ खा ली। जरमक ने खाली जग और गिलास लड़के की तरफ बढ़ा दिए और इधर उधर देखते हुए बोला, वो एक खाली चारपाई पड़ी है, उसे यहाँ लाकर डाल दो और चाय बन जाए तो ले आना, देर मत करना, हम लोग जरा जल्दी में हैं। लड़का दौड़कर पहले जग और गिलास रख आया और फिर उसने दूर पड़ी हुई खाली चारपाई उठाकर लैंड क्रूजर के करीब दरख्तों के साए में डाल दी। लैंड क्रूजर की खनौत की छत अब भी तप रही थी और वो तीनों गाड़ी से उतरकर उस पलंग सी चारपाई पर बैठ गए और कुंदन की पुष्ट दूसरी चारपाई पर बैठे हुए बूढ़े की तरफ थी, जबकि खुशनुमा और दरियाब उसकी इस तरह बैठी थी कि उनके चेहरे उन बूढ़ों की तरफ थे और उन बूढ़ों ने उन दोनों को सरसरी से अंदाज में देखा और फिर हुक्के के कश लगाते हुए अपनी बातों में मसरूफ हो गए। तकरीबन 10 मिनट बाद लड़का प्लास्टिक का एक ट्रे में चाय के कप रखे हुए आ गया और जरमक ने एक कप उठाकर उन तीनों लड़कियों को दिया और चौथा खुद ले लिया और चारपाई के करीब ही खड़े खड़े चुस्कियां लेने लगा। कुंदन चाय पीकर खाली कप नीचे जमीन पर रखने के लिए मुड़ी तो दूसरी चारपाई पर बैठा हुआ एक बूढ़ा उसका चेहरा देखकर चौंक गया और उसके चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे जहनी तौर पर कोई झटका लगा हो। वो गहरी नजरों से कुंदन को देख रहा था और फिर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसने हुक्के दूसरे बूढ़े की तरफ घुमा दी और अपनी जगह से उठकर उन चारपाई के करीब आ गया और उसकी नजरें अभी तक कुंदन के चेहरे पर मरकूज थीं। कुंदन भी उस बूढ़े की तरफ देखने लगी। क्या बात है बाबा जी, आप मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? कुंदन ने नरम लहजे में पूछा। सियानों ने कहा है कि बाद औकात आंखों देखे पर भी यकीन नहीं करना चाहिए और वह फरेबे नजर होता है, लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, बूढ़े ने कहा। मैं समझी नहीं। कुंदन ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और वैसे वह बूढ़े किस बात पर चौंक गई थी। लोग जिसे मुद्दा तस्वर कर चुके हैं, आज वही हस्ती जिंदा जावेद मेरे सामने मौजूद है। नहीं, और मुझे झटलाने की कोशिश मत करना कुंदन बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ और मेरा हाफजा इतना कमजोर नहीं हुआ कि बसारत धोखा दे रही हो। और बूढ़े ने कहा, आप कौन हैं? और कुंदन के लहजे में हैरत थी। मैं जरकंद हूँ, नसर कोट का स्कूल मास्टर, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं महीने में एक मरतबा जागीरदार से मिलने सुंदस महल जरूर आया करता था और वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े इल्म दोस्त, और हम रात भर इल्मी बहसें किया करते थे और कभी कभी तुम भी हमारी महफिल में शरीक हुआ करती थी। याद आया तुम्हें बेटी? और 10 बरसों ने मुझे एकदम बूढ़ा कर दिया है, लेकिन गौर से देखो तो तुम मुझे पहचान लोगी। हाँ, मुझे याद आ गया, कुंदन ने जवाब दिया। आप एक मरतबा अपनी बेटी को भी सुंदस महल लेकर आए थे और मैंने उसे जबरदस्ती 1 हफ्ते के लिए रोक लिया था। अब तुमने वाकई मुझे पहचान लिया है, बूढ़े जरकंद ने कहा, लेकिन 10 साल पहले। बड़ी तवील दास्तान है। कुंदन ने उसकी बात काट दी और जिंदगी ने मोहलत दी और कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो तफसील से बताऊंगी। जागीरदार कैसे हैं? सुना है कि 2 साल से बीमार हैं। एक मरतबा उन्हें देखने के लिए सुंदस महल गया था, मगर मैनेजर के आदमियों ने मुझे हवेली में दाखिल नहीं होने दिया। और ये भी एक तवील दास्तान है, कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आप कैसे हैं? इस बस्ती में रहते हैं? नहीं, दरवेशपुर में बेटे के पास रह रहा हूँ और वो कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं बेटी से मिलने शाहपुर जा रहा था। मेरा एक बेली यहाँ रहता है। और उसने चारपाई पर बैठे हुए एक बूढ़े की तरफ इशारा किया और उससे मिलने के लिए यहाँ उतर गया था। 1-1.5 घंटा रुक कर दूसरी बस पर चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? दरवेशपुर। हाँ मास्टर जी, कुंदन ने जवाब दिया। मैं 2 दिन में शाहपुर से वापस आ जाऊंगा और तुम मुझसे मिलने जरूर आना। घर का पता शायद मैं ठीक तरह से ना समझा सकूं। मेरा बेटा बदरान गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है। कॉलेज में तुम उससे मिल लो तो वो तुम्हें घर ले आएगा, जरकंद ने कहा।
मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी मास्टर जी, कुंदन ने जवाब दिया। और वो कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर जरमक ने कुंदन को इशारा किया और कुंदन मास्टर जरकंद को खुदा हाफिज कहती हुई लैंड क्रूजर में जा बैठी। जरियाब और खुशनुमा भी चारपाई से उठकर गाड़ी में आ गईं और जरमक ने लड़के को बुलाकर चाय के पैसे दिए और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कुछ ही देर बाद लैंड क्रूजर एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। तकरीबन 1 घंटे तक पक्की सड़क पर सफर करने के बाद जरमक ने लैंड क्रूजर को एक बार फिर दाएं तरफ खेतों में कच्चे रास्ते पर उतार लिया और वो आधे घंटे तक उन कच्चे रास्तों पर सफर करते रहे। और फिर एक नहर के पुल पर पहुंचकर जरमक ने लैंड क्रूजर रोक ली। अपना सामान लेकर नीचे उतर जाओ और हमें ये गाड़ी यहाँ छोड़नी होगी, जरमक ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या मतलब? यहाँ तो दूर दूर तक किसी बस्ती के सार दिखाई नहीं दे रहे, जरियाब ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखते हुए कहा। जहाँ हमें जाना है वहाँ ये गाड़ी ले जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, जरमक ने जवाब दिया। लेकिन हमें जाना कहाँ है? आसपास तो किसी बस्ती के आसार तक दिखाई नहीं देते, जरियाब ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा। पुल से दूसरी तरफ ये रास्ता दरवेशपुर की तरफ जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 10 कोस के फासले पर है, जबकि पुख्ता सड़क से ये फासला 8 मील के बराबर है। फासला ज्यादा होने की वजह से ये रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम इस लैंड क्रूजर को इसी नहर में धकेल देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अरसा तक किसी की नज़रों में नहीं आएगी। अगर ये लैंड क्रूजर किसी की नज़रों में आ भी गई तो वह यही समझेगा कि हम दरवेशपुर की तरफ गए हैं। लेकिन वो एक लम्हा को रुका और फिर दाएं तरफ इशारा करते हुए बोला, हम उस तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर आदमपुर नाम की एक जिम्मेदार है। आदमपुर नाम की एक बस्ती है। बंजान की फूफोजाद बहन उस बस्ती में रहती है और उसका शोर एक छोटा सा जिम्मेदार है। बंजान ने अपने बहनोई नामदार से मेरी मुलाकात कराई थी और कहा था कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ आ सकते हैं। और एक बार फिर खामोश हो गया और कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। फिर बोला, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उसके साथी की गिरफ्तारी और खामस की पिटाई और जान बचाकर भागने की खबर दरवेशपुर पहुंच चुकी होगी। हो सकता है कि खामस भी अब तक दरवेशपुर पहुंच गया हो और ऐसी सूरत में शहर के तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही होगी। इसलिए मैं तुम लोगों को लेकर फौरी तौर पर शहर का रुख नहीं करना चाहता। हम 1-2 रोज नामदार के मेहमान रहेंगे और इस दौरान में अकेला शहर जाकर या नामदार को भेजकर शहर की सूरत हाल का जायजा लूंगा। उसके बाद हम शहर का रुख करेंगे और मुमकिन हुआ तो इस दौरान बंजान से भी मुलाकात की कोशिश की जाएगी ताकि उसे सही तौर पर यह मालूम हो सके कि आका को कहाँ ले जाया गया है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तजवीज़ मुनासिब है, जरियाब ने कहा। आप चल सकेंगी? जरमक ने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा और वह कुंदन को कभी आप और कभी तुम कहकर मुखातब करता था। हाँ, मैं चल लूँगी और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कुंदन ने जवाब दिया। और उन्होंने अपना सामान लैंड क्रूजर से उतार लिया। उस सामान में जरियाब का सूटकेस और वो पोटली शामिल थी जिसमें कुंदन, खुशनुमा और जरमक के कपड़े और बाद दूसरी चीज़ें थीं। जरमक ने लैंड क्रूजर का रुख पुल के करीब नहर के किनारे की तरफ कर दिया और किसी भी नहर के पुल के करीब पानी आम तौर पर गहरा होता है, इसलिए जरमक ने लैंड क्रूजर को पुल के करीब ही नहर में धकेलने का फैसला किया था। गाड़ी का रुख सीधा करके वह नीचे उतर आया और फिर चारों मिलकर उसे धक्का लगाने लगे। लैंड क्रूजर के अगले पहिए नहर में उतर गए और फिर गलाड़ी कलाबाजियां खाती हुई शराब से नहर में जा गिरी। कई मिनट तक पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठते रहे और फिर नहर का पानी पहले की तरह पुरसकून अंदाज में बहने लगा। जरमक ने उस जगह पानी का जायजा लिया। लैंड क्रूजर पानी की तह में बैठ गई थी। पानी गाड़ी से तकरीबन 6 इंच ऊपर से बह रहा था और पुल पर से गुजरने वाला कोई शख्स गदले पानी में डूबी हुई लैंड क्रूजर को नहीं देख सकता था, लेकिन रुककर गौर से देखने से लैंड क्रूजर नजरों में आ सकती थी। जरमक ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाते हुए दरियाब का सूटकेस उठा लिया। पोटली खुशनुमा ने सर पर रख ली और नहर की पटरी पर जनूब की तरफ चलने लगे। कुंदन अगरचे उनका साथ दे रही थी, लेकिन उसकी चाल में लखड़ाहट थी और वो रह रहकर ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी और उसकी वजह से दूसरों को भी आहिस्ता चलना पड़ रहा था। हर 200-250 गज के बाद वो कुछ देर के लिए रुक जाते और वो तकरीबन 1 मील तक नहर के साथ साथ चलते रहे और फिर वो नहर की पटरी से उतरकर खेतों में पगडंडी पर चलने लगे। नहर की पटरी पर तो दरख्तों का साया था, लेकिन खेतों में धूप थी। अलबत्ता जहाँ कहीं कोई दरख्त नजर आता वो कुछ देर के लिए उसके साए में रुक जाते। जरियाब के लिए ये सब कुछ जिंदगी का एक नया सनसीखेज तजर्बा था।
वो घर से निकली थी अपने खानदान की तारीख पर रिसर्च करने और हक़ाइक़ जमा करने के लिए, लेकिन सूरत हाल ने एक अजीब शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी पुरसकून जिंदगी में तहलका सा मच गया और इन चंद दिनों में वो कई मरतबा मौत से नबर्दे आजमा हुई थी। वो अगर चाहती तो सब कुछ छोड़कर अपने शहर वापस चली जाती और बाप की छोड़ी हुई दौलत पर इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार देती, लेकिन वो एक महम जो फितरत की मालिक थी और ये महम उसके लिए ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि सनसीखेज साबित हुई थी। उसे यकीन था कि वह जल्द या बदेर हक़ाइक़ की तह तक पहुंच जाएगी और उसे सुंदस खानदान की तारीख मुरतब करने के लिए बहुत सा मवाद मिल जाएगा और फिर वो कुंदन को इन हालात में छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ज़रियाब को कुंदन की हालत पर अफसोस हो रहा था। वसीओ अरीद और सरसब्दो शादाब जागीर की अकलौती वारस इस तरह ठोकरें खाती फिर रही थी और उसका बाप दुश्मन की कैद में था। उसकी ज़िंदगी खतरे में थी और वह उसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए हुए थी। ज़रियाब से वे सब कुछ सोचती हुई उनके साथ चलती रही। कुंदन को कभी वह सहारे से चलाती और कभी खुशनुमा, और वो लोग जैसे तैसे गांव से कुछ फासले पर लीची के एक बाग के करीब पहुंच गए। इत्तेफाक से बंजान का बहनोई नामदार उन्हें बाग ही में मिल गया और उसके साथ 2 आदमी और भी थे जो वहां काम कर रहे थे। नामदार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और राजदारी के ख्याल से वो उन्हें गांव ले जाने की बजाय बाग में मुतसिल एक मकान में ले आया और उस मकान के सेन में एक तरफ लकड़ी की खाली पेटियों के अंबार लगे हुए थे और एक कमरे में कुछ और सामान भरा हुआ था। अलबत्ता 2 कमरे खाली थे और एक कमरे में खुरदरे बांध की 2 चारपाइयां भी बिछी हुई थी। नामदार कुछ देर उनसे बातें करता रहा और फिर खाने वगैरह का बंदोबस्त करने गांव चला गया, जो बाग की दूसरी तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर था, और वो दोनों आदमी उसके मजदूर थे जो नामदार ने उन्हें हदायत कर दी थी कि मेहमानों का ख्याल रखें। नामदार तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आया और उसने उनके सामने दस्तरखान बिछाकर बड़ी आदि से खाना चुन दिया। खाने के बाद ज़रमक ने दोनों चारपाइयां कमरे से निकालकर सेहन में दरख्त के साए में बिछा दी। कुंदन एक चारपाई पर लेट गया और वह ज़रियाब खुशनुमा के साथ दूसरी चारपाई पर। वो बेहद थकी हुई थी, फौरन ही सो गईं। ज़रमक नामदार के साथ मकान से बाहर आ गया था और लीची के दरख्तों के नीचे उससे बातें करता रहा। शाम हो गई। नामदार ने अंधेरा फैलने से कुछ ही देर बाद उनके खाने का बंदोबस्त कर दिया। कमरों में गर्मी थी और खाने के बाद वो सेहन में ही रहे। 2 चारपाइयां और मंगवा दी गई थीं। नामदार तकरीबन 10 बजे तक वहां रुका रहा और फिर गांव चला गया। ये चारों अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे कुछ देर बातें करते रहे और फिर ज़रियाब वगैरह तो सो गईं, लेकिन ज़रमक जागता रहा। वो सोच रहा था कि कल या तो नामदार को शहर भेजेगा या 1-2 दिन बाद हालात का जायजा लेने के लिए खुद दरवेशपुर जाएगा, ताकि बंजान से मुलाकात करके ये मालूम किया जा सके कि जागीरदार इमरान को वो लोग कहाँ ले गए हैं। उसे पूरा एहसास था कि जागीरदार की ज़िंदगी खतरे में है। ज़रियाब की वजह से यह खतरा और बढ़ गया था और वो लोग ज़रियाब के बारे में किसी गलतफहमी में मुब्तला थे। उनके ख्याल में ज़रियाब जागीरदार की कोई करीबी अजीज़ थी और निमरान ने जागीर की विरासत के सिलसिले में उसे बुलाया था। इसलिए वो लोग हाथ धोकर ज़रियाब के पीछे पड़ गए थे और हर कीमत पर उसे गिरफ्त में लेना चाहते थे। ज़रमक ये सोचकर मुस्कुरा दिया। रखेल शाह को अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि जागीरदार की बेटी कुंदन जिंदा है। अगर उसे पता चल जाता तो दुनिया भर के काम छोड़कर कुंदन की तलाश शुरू कर देता और उसे हर कीमत पर ख़त्म करने की कोशिश करता। लेकिन अभी तक इस हकीकत से लाइल्म था कि जागीर की असल वारस जिंदा है। ज़रमक ये सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का पिछला पैर था और किसी ने उसे झंझोड़ा तो वह गड़बड़ाकर उठ गया। ज़रमक उठो, जल्दी करो। नामदार की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या हुआ, कोई खास बात है? खामस और उसके आदमी गांव पहुंच गए हैं और वह किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। जल्दी करो, इनको भी जगाओ। नामीदार के लहजे में बदहवासी नुमाया थी और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर ज़रियाब वगैरह भी उठ गईं। ज़रियाब के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। हवेली का वो असीब यहाँ भी पहुँच गया था। ज़रियाब के ख्याल में खामस वाकई असीब था या कोई बदरू, और ये लोग कितनी राजदारी से छुपते छुपाते आदमपुर नामी उस छोटी सी बस्ती में आए थे। लेकिन उन्हें वहां पहुंचे हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे। थकन भी पूरी तरह नहीं उतरी थी कि वो भी उनकी तलाश में यहां पहुंच गया। रात के पिछले पैर इस तरह जगाए जाने से वो तीनों बुरी तरह बदहवास हो गई थी। लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास होते ही उन्होंने अपने हवास पर काबू पाने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। तीनों सूटकेस और पोटली उठाकर कमरे से बाहर निकली।
तो नामदार पहले ही से गोया भागने को तैयार खड़ा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर खुशनुमा के हाथ से पोटली ले ली और दरियाब से सूटकेस जरमक ने ले लिया था। इस तरफ मेरे पीछे आओ जल्दी, नामदार मकान के पिछली तरफ तकरीबन दौड़ते हुए बोला। वो चारों मकान की पिछली तरफ आ गए और चंद गज आगे पिछली चार दीवारी में एक छोटा सा दरवाजा था। नामदार ने कुंडा खींच कर दरवाजा खोल दिया और सब तेजी से बाहर निकल गए। इस तरफ से कुछ दूर तक खुली जगह थी और उससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिजा गुलाब की खुशबू से महकी हुई थी। नामदार तकरीबन दौड़ते हुए जरमक को बता रहा था कि इस तरफ गुलाब के पौधों के खेत हैं। कुतबा आबाद और दरवेशपुर में फूलों की बड़ी मांग थी। कुर्बो जवार के बाद जिम्मेदारों की तरह नामीदार ने भी 3-4 खेतों में गुलाब लगा रखे थे और जिनसे उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। जरा एहतियात से आइए आप लोग, और ये गुलाब के पौधे हैं, कहीं कांटों में न उलझ जाएं। नामदार खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए बोला। पगडंडी बहुत तंग सी थी और दोनों तरफ से पौधों की शाखें फैली हुई थी और जिनकी वजह से उनके कपड़े बार बार कांटेदार शाखों में उलझ रहे थे। नामदार सबसे आगे था और उसके पीछे कुंदन, खुशनुमा, दरियाब और सबसे आखिर में जरमक था, जो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। तारीकी में आगे बढ़ने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। बार बार ठोकरें लग रही थी। गुलाब के खेतों से निकलकर वो दूसरे खेतों में पहुंच गए और फिर वो दफतन ठठक कर रुक गए। फायरिंग की आवाज सुनकर उन सब के दिल उछलकर हलक में आ गए थे। जरमक ने पीछे मुड़कर देखा और आवाज से तो यूं लगा था जैसे फायरिंग उनके बहुत ही करीब से की गई हो, लेकिन हकीकत यह थी कि फायरिंग वहां से तकरीबन 400 गज दूर गांव में हो रही थी। हवा का रुख होने की वजह से आवाज बिल्कुल करीब से आती हुई महसूस हुई और गांव की तरफ आसमान पर शोले लपकते हुए नजर आ रहे थे। गालबन खामस और उसके साथी गांव के लोगों को हरासा करने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे थे, लेकिन दरियाब और जरमक वगैरह जानते थे कि वो गांव वालों से उनका पता मालूम करने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। वो लोग मकान से तकरीबन निसफ मील दूर पहुंच चुके थे। नामीदार एक जगह आकर रुक गया और आगे का बहुत बड़ा टेला था और जिस पर खुद रू झाड़ियां और दरख्तों की बहुताब थी। इससे आगे अब तुम लोगों को खुद ही जाना पड़ेगा, नामीदार ने जरमक की तरफ देखते हुए कहा, और इस वक्त मेरा गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव में सिर्फ 1-2 आदमियों को यहां तुम्हारी मौजूदगी का इल्म है और मुमकिन है कि वो लोग जुबान ना खोलें, लेकिन खामस और उसके आदमी पूरे गांव वालों को जुल्म का निशाना बनाएंगे। और उस टेले से तकरीबन 200 गज आगे एक वीरान डेरा है और उसे 50 कदम बाईं तरफ एक बाउली है और मेरा ख्याल है कि तुम लोग वहां महफूज रहोगे और मैं सुबह दिन चढ़े से पहले तुम लोगों के पास आने की कोशिश करूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, माफ करना आकाज़ादी, और मैं आप लोगों की खिदमत नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब ये जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे और आपको अपना हक मिलेगा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है नामदार, कुंदन ने कहा, और हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शर्मिंदा ना कीजिए, नामदार बोला। अब तुम जाओ और अपने गांव वालों की खबर लो, कुंदन ने कहा। नामदार ने पोटली दरियाब के हाथ में थमा दी और उन्हें खुदा हाफिज कहकर वापस मुड़ गया। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ खेतों में जा रहा था। जरमक वगैरह चंद लम्हे वहां खड़े रहे और फिर एक पगडंडी पर होते हुए टेले पर चढ़ने लगे। टेले पर बड़ी दबीज घास थी, गुंजान झाड़ियां थी और टहली और पीपल के दरख्त थे, और वह टीले पर पहुंचकर रुक गए और कुंदन का सांस फूल गया था। उसने खड़े खड़े मुड़कर देखा और उसके साथ ही हल्की सी चीख निकल गई। जरमक, दरियाब और खुशनुमा भी उसकी चीख सुनकर मुड़े और दूसरे ही लम्हे उनके चेहरे भी धुआं हो गए। गांव में एक जगह आग के शोले बुलंद हो रहे थे। दरियाब को समझने में देर नहीं लगी कि उन लोगों को गांव में ना पाकर खामस और उसके साथियों ने बस्ती के किसी घर को आग लगा दी थी। फासला अगरचा बहुत ज्यादा था, लेकिन फायरिंग और लोगों की चीखों पुकार की आवाजें वहां तक सुनाई दे रही थीं। खुदा गारत करे इन लोगों को, कुंदन ने दांत कचकचाए, और इंसानियत तो इन लोगों को छूकर भी नहीं गुजरी। इंसान होते तो इंसानियत से कोई तलक होता, ये तो भेड़िए हैं, खूनी भेड़िए, जरमक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, चलो टेले के दूसरी तरफ चलो और ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहना मुनासिब नहीं। वो लोग टेले पर गंजान झाड़ियों और दरख्तों में चलने लगे। दरियाब और कुंदन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। गांव में आग के शोले फैलते और बुलंद होते जा रहे थे। कुंदन की टांग का जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और सुबह उन्हें अच्छा खासा चलना पड़ा था, और इस वक्त भी भाग दौड़ के बाद वो जख्म में तकलीफ महसूस करने लगी थी और उसकी टांग में हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी। दरियाब ने उसकी तकलीफ को भांप लिया और कुंदन को सहारा देकर चलने लगी, और कुछ ही देर के बाद वो टेले के दूसरी तरफ ढलान पर उतर रहे थे।
नामदार ने बताया था कि टेले से तकरीबन 200 गज आगे वीरान डेरा मिलेगा, लेकिन उस डेरे तक पहुंचने के लिए 400 गज का फासला तय करना पड़ा था। वो 3 कमरों का एक मुख्तसर सा मकान था और जिसके आगे कुशादा सहन भी था। मकान के सामने आसार अब भी मौजूद थे और जिनसे अंदाजा होता था कि वहाँ ढोड़ नगर बांधे जाते थे। मकान भी टूट फूट चुका था और उस काबिल नहीं था कि वहाँ ठहरा जा सकता। वो लोग कुछ देर तक शिकस्ता मकान के सामने दरख्तों के नीचे खड़े रहे और जरमक इधर उधर देख रहा था और फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि बाउली इस तरफ होनी चाहिए, मेरे साथ आओ तुम लोग। कुंदन वगैरह उसके पीछे चल पड़ी। तारीकी में उन्हें बार बार ठोकरें लग रही थी। जरमक के पास अगरचे दरियाब वाली पेंसिल टार्च मौजूद थी, लेकिन वो टार्च रोशन करके किसी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था और वो उन्हें मोहतात होकर चलने की हिदायत करता हुआ उनके आगे चलता रहा। बाउली तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी और वो भी दरअसल एक सरसब्र टेला था और जिसके नीचे खुदाई करके एक सुरंग सी बनाई गई थी। जरमक को समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ बाउली क्यों बनाई गई थी। टेले के सामने ऐसे आसार मौजूद थे और जिनसे ये ज़ाहिर होता था कि किसी ज़माने में यहाँ एक बड़ी नहर गुजरती थी। तकरीबन 100 साल या उससे भी पहले ये इलाका किसी बड़ी जिम्मेदार या जागीरदार की मलकियत रहा होगा और नहर के किनारे टेले के नीचे ये बाउली उसने अपने आराम के लिए बनवाई होगी। पुराने ज़माने में बड़े बड़े जिम्मेदार और जागीरदार अपने अपने इलाकों में दरिया या नहर के करीब इसी किस्म की बाउलियाँ बनवाया करते थे। दरिया नहर का पानी बाउली के करीब से इस तरह गुजारा जाता कि अंदर दाखिल होने वाली हवा ठंडी होकर आती और ये लोग अपनी दोपहर इन्हीं बाउलियों में गुजारा करते थे। बाज़ जिम्मेदारों और जागीरदारों ने तो इन बाउलियों में ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा कर रखा था।